the online demo of basic to intermediate Python programming. और सबसे पहले हम जो है वो UXL के बारे में जान लेते हैं कि UXL what is really UXL about. And UXL is a fintech training firm and consultancy, and it is official training partner with Skills for All, Left Government of Pakistan. And we are registered with STEFTA, Government of Sindh. STEFTA stands for Sindh Technical Education Vocational Training Authority. It's a regulating authority established by the government to regulate all the training, vocational training institutes. We are also affiliated with the Trade Testing Board, Sindh, Government of Sindh. And you are really fortunate enough कि जो आपको certificates मिलेंगे towards the end of this program वो endorsed होंगे from the Trade Testing Board Sindh, Government of Sindh. We are also the member of FPCCI and Karachi Chamber of Commerce and Industries, Federation of Pakistan, Chamber of Commerce and Industries, and Karachi Chamber of Commerce and Industries form of these. और इसके बारे में मजीद जो है वो फिर हम आगे चल के डिस्कस करेंगे. बट alhamdulillah, we are very well connected with the industry, जहाँ से हमें research मिल रही होती है कि what are the trainings that are really needed by the industry, and उनको कैसे हम यहाँ पे establish कर सकते हैं, deploy कर सकते हैं, और फिर talent की जो है वो further grooming कर सकते हैं. All right. ये हमारा जो है वो इंस्टीट्यूट है, ऑब्वियसली वेल एस्टेब्लिश्ड है, और जो है वो सम ऑफ द पिक्चर्स दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू. ऑब्वियसली ये ट्रेनिंग तो ऑनलाइन होगी, तो बट यू ऑलवेज वेलकम टू जॉइन अस हियर अगर कभी भी कोई आपको अगर कोई क्वेरी हो. बट अदरवाइज दिस इज शॉर्ट पिक्चर्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट. नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर टू मिस फरा. And I will be stop sharing my screen so that Ms. Farah can continue on the demonstration presentation of this whole course and how it can really benefit into your career and what exactly will be covered into this program. Because देखें ये डेमो रखने का मकसद क्या था. डेमो रखने का मकसद यही था कि जो है वो सबकी एक्सपेक्टेशंस क्लियर हों, और वी शुड एग्जैक्टली नो कि भाई क्या कवर होने वाला है, कहाँ पे हमारे स्किल्स में बेनिफिट होगा हमें, और जो है हम इससे कैसे जो है वो अपने करियर को आगे एक्सेलरेट कर सकते हैं. तो आई एम रियली थैंकफुल टू मिस फरा महबूब, हु इज द लीड फैकल्टी मेंबर ऑफ UXL in terms of data science and in terms of Python programming. और इससे पहले हमने एक डेटा साइंस का बैच भी लॉन्च किया था, लेकिन ये प्रोग्राम अपने आप में मुख्तलिफ है बिकॉज ये सिर्फ पाइथन प्रोग्रामिंग पर ही फोकस करता है, और ये बेसिक टू इंटरमीडिएट पाइथन प्रोग्रामिंग पे फोकस करता है. मजीद इंफॉर्मेशन विल बी गेटिंग फ्रॉम मिस फरा, who will be now giving us the whole demonstration. Over to you, Miss Farah. Thank you. Thank you, Farhan Saab. Assalamu alaikum, everyone, and thank you very much for your participation. पहले तो मुझे बताएं, can you all clearly hear me? You can put it on chat. मेरी आवाज में तो कोई वो नहीं है disconnection. Yes, Miss Farah, we can hear you, but the audience can also confirm. Okay, so I get at least one. Thank you, Wasil. Thank you, Sana. And mashallah, I'm very excited while Farhan Saab was introducing. मैं देख रही थी कि बड़ा अच्छा mix है gender का, and their girls were excited and females were excited to learn Python programming, which is a very happy thing for me to observe. So that's a lovely. अच्छा, मेरा नाम फरा महबूब है. मेरा एक स्टार्टअप है AI based Validate. 1.5 साल I've been CEO of the startup for about a year and a half. Apart from being a full-time founder, I'm a part-time teacher. What I teach is also what I do, which is Python and data science and business intelligence. और इस bracket में मेरी trainings भी होती हैं. And I've been associated with UXL for about, अगर cumulative करें तो it's about 8 months. We did one very exciting course in the past, and it turned out to be a very exciting experience. तो वो कोर्स तो हमारा जरा डिफरेंट नेचर का था. फिर हमने आप लोगों की नीड्स को देखा, आप लोगों की नीड्स क्या है, और क्योंकि वो फरहान साहब ने जो बताया है कि UXL एक ऐसा इदारा है जो कि बहुत ज्यादा एकेडेमिया और इंडस्ट्री के बीच की जो गैप है ना, उसको बहुत ऑब्जर्व करके एड्रेस करता है.
तो फिर हमने उस हिसाब से ये कोर्स क्राफ्ट किया स्पेशली फॉर यूएक्सएल, कि जिसमें हम लोग आप लोगों को प्रोग्रामिंग सिखाएं और 2 महीने की कमिटमेंट, लेकिन उस 2 महीने में आप लोग इतनी प्रोग्रामिंग सीख लें that you can confidently use Python programming to open for yourself career opportunities, but also to open for yourself more learning tracks. So I think that is the long and short of my introduction, which is not as important as the course's introduction. So I'm going to pause for 2 minutes. वैसे 2 मिनट का पॉज लेकर अब बहुत मुख्तसर फ्रेज या बहुत मुख्तसर एक लाइन में अगर तमाम पार्टिसिपेंट्स चैट में मुझे ये मोटिवेशन टू डू दिस कोर्स लिख दें. आई डोंट वांट लॉन्ग आंसर्स में 3-4 लफ्ज छोटा सा फ्रेज के भाई आप लोग क्यों अपना टाइम और मनी और अटेंशन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है इस कोर्स में, वो अगर आप लोग चैट में लिखते जाएं. So I'll continue speaking while you type it on chat, and later I'll read it to know exactly if there is resonance in our goals and inshallah ta'ala the goals of our participants. Now, what is this course about? It's a course to train the participants on Python programming. और ये कोर्स ऐसे हमने डिजाइन किया है कि इट्स अ बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल, which means कि अब ये कोर्स जो है ये आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि आपको पहले से प्रोग्रामिंग आती हो और आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि आपको पहले से पाइथन आती हो. तो हम आपसे प्रोग्रामिंग कोर्स में कोई बैकग्राउंड नॉलेज आपकी नहीं एक्सपेक्ट करें कि इस प्रीरेक्विजिट के साथ आए, और हम आपको प्रोग्रामिंग में भी टीच करेंगे और प्रोग्रामिंग में पाइथन लैंग्वेज में भी टीच करेंगे इन दीज 2 months. नाउ व्हाई वुड वी चूज प्रोग्रामिंग इन पाइथन? देखिए पाइथन जो है ना, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जब जॉब्स देखते हैं तो उसमें तो पाइथन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन जॉब्स है, चाहे वो अब हमारी पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जॉब्स खुल रही है, जहां पे भी डिजिटलाइजेशन हो रही है ना वहां पे पाइथन मांगी जा रही है. जबकि आप जरा से भी गूगल सर्च करें तो जावा, सी शार्प, जावा स्क्रिप्ट, HTML, PHP प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो बहुत सारी हैं, फिर पाइथन ही क्यों मांगी जा रही है? देखिए पाइथन की स्ट्रेंथ ये है कि पाइथन नई लैंग्वेज है, इसको 10 साल से ज्यादा नहीं हुए पॉपुलर हुए हुए, और पाइथन बनाई गई थी नॉन प्रोग्रामर्स के लिए, यानी जो बंदा हार्डकोर BCS कर रहा है, प्रोग्रामर है, उसके लिए जो लैंग्वेजेस है वो जरा सी ज्यादा मेहनत मांगती है सीखने और यूज करने में. फिर लोगों ने कहा कि भाई सिर्फ उन्होंने तो यूज नहीं करनी जो प्रोग्रामर्स हैं, डॉक्टर अगर कोई टेक्नोलॉजी यूज करना चाहे या कोई मैनेजर यूज करना चाहे या कोई वो बंदा जिसका कंप्यूटर साइंस का बहुत हार्डकोर बैकग्राउंड ना हो, तो उसके लिए एक सुपर सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए. सुपर सिंपल लैंग्वेज का मतलब ये है कि उसको एक्वायर करना आसान है, उसको लर्न करना आसान है, उसमें पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, यानी उसमें आप लोग जो लाइब्रेरीज जो है वो बहुत आसानी से डिप्लॉय हो सकती हैं, उसमें डेटा एनालिसिस की बहुत है, उसमें लूपिंग के बहुत तरीके हैं, वेरिएबल्स के बहुत तरीके हैं, तो वो वैरायटी जो है ना, आसान तरीन वैरायटी ऑफ प्रोग्रामिंग पॉसिबिलिटी वो पाइथन है. तो इसीलिए पाइथन को हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग से स्टार्ट कर सकते हैं विद द कॉन्फिडेंस दैट इफ यू स्टे इन्वॉल्व्ड and if you stay committed to this, then it will not be very difficult for you to be a Python developer. So I'm going to give you an overview कि ये कोर्स क्या है, यानी आप जो पाइथन की कोर्स का भी डेमो देख रहे हो क्या है, उसमें क्या क्या आप सीखेंगे हर क्लास में. तो हमारी 16 क्लासेस होंगी, बट आई एम गोना कीप वन क्लास एज अ सरप्राइज क्लास एंड वी हैव 15 स्केड्यूल. सरप्राइज इसलिए कि इन माय एक्सपीरियंस इट्स नॉट अ 1-to-1 मैपिंग. जो हमारे आखिरी की 2 क्लासेस हैं ये 3 ही सेशंस में चले जाते हैं, बिकॉज once you reach there you have understood so much, you want to ask so many questions and it becomes so interactive कि वो 2 क्लासेस नहीं होती, वो 3 होती हैं. So I'm gonna present to you the structure of the class, and then one by one I'll show you some demonstrations of the code which you can see on my tabs, ताकि आपको अंदाजा हो किस किस्म का कोड आप सीखेंगे और उसको सीखने की वजह क्या है. तो देखिए हम शुरू करेंगे कि भाई वेरिएबल्स और टाइप्स क्या होता है पाइथन में, टाइप कन्वर्जन क्या होती है, अनकंडीशनल फ्लो एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, और एंड में जाके हम लोग डेटा को कैसे हम पुल कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं, एक्सेल की शीट को पैंडास पे लोड करना, और उससे कैसे मतलब कि एक तो होता है ना कि आप सिर्फ प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, मगर उसे डेटा पुल करके फिर उस डेटा को कैसे यूज करना है.
So that will be the end of our course. In the next slides, what I'll do is I'll start with first class. I'll explain to you what is this, what are we going to do over here, and then I'll show you the demonstration of the code that you'll be studying. The first thing that we'll study is variables and types in Python. And Python की data types का chart आपके सामने है. अब अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि भाई एक चीज की list बना दे, तो क्यों लिस्ट बनानी है, लिस्ट का काम क्या होता है, और लिस्ट में किस तरीके से चीजों को इस्तेमाल किया जाता है. जैसे कि क्या आप इस लफ्ज वेरिएबल को इस लफ्ज टाइप्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं? आप लोग नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तो अंग्रेजी है, अंग्रेजी में तो मल्टीप्लाई नहीं होता. लेकिन क्या आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 2 और 3 नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई होते हैं. तो जो आप लिख रहे हैं उसकी टाइप नंबर है तो वो अलग बिहेव करेगा, उसकी टाइप स्ट्रिंग यानी टेक्स्ट है तो वो अलग बिहेव करेगा. और ये बहुत बेसिक चीज होती है समझने के लिए, ताकि आप सही टाइप्स यूज करके सही फंक्शंस परफॉर्म कर सके. तो ये कुछ इस तरह से हम लोगों का इंटरफेस होगा. ये इंटरफेस कोलैब पे है, गूगल नोटबुक है. और नोटबुक पे काम करने का फायदा ये कि उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास गूगल अकाउंट है तो आप अगर गूगल अकाउंट से लॉगिन होकर colab.research.google.com पे जाए तो आपका भी ये इंटरफेस खुल जाएगा. तो एक तो ये बड़ी जबरदस्त बात है. दूसरा, इसमें और जो फीचर्स हैं वो ये हैं कि क्योंकि पाइथन एक बहुत ही फास्ट लैंग्वेज है, तो हम इसको क्लाउड पे जीपीयू यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट पे यूज कर सकते हैं, टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट भी. तो अगर हमें बहुत ज्यादा कोई तेजी से स्पीड से काम करना है तो वो हमारे पास हार्डवेयर क्लाउड से कनेक्टेड है. गूगल ने हमें फ्री सर्विस दी हुई है. तो प्रोग्रामिंग सीखने के लिए एक ये बहुत जबरदस्त इंटरफेस है. इस इंटरफेस के और फायदे ये हैं कि देखिए मैंने इधर एक आप लोगों को कुछ बात समझाने के लिए लिखी है, तो मैं लिख भी सकती हूँ और मैं लिखने के साथ साथ कोड भी लिख सकती हूँ. तो यहाँ पे कोड लिखना है कि टेक्स्ट लिखना है, तो पूरी एक नोटबुक या ट्यूटोरियल बन जाता है एक ही जगह पे, जिसमें कोड भी रन हो रहा होता है और साथ साथ उसके कमेंट्स भी होते हैं. और अगर मैं इसको प्ले दबाऊं तो रन होना शुरू हो जाएगा. तो दिस विल बी एन इंटरफेस ऑफ लर्निंग. और इसमें हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा क्या क्या है, और what can be done with those types, what are the functions of those types. This is our tuple, our dictionary, our set data type, and then we have some more interesting data types, some quizzes in the end to keep you engaged. This is our first module or first class. Now in the second class we'll start looking into type conversion, which is also something which पढ़ाने में या बात करने में बहुत मासूमाना सी चीज लगती है, but this is one of the most critical things for you to understand when you're studying Python. कि अगर आपके पास integer है तो क्या आप उस integer को या उस number को string में convert कर सकते हैं, या आप उसको decimal point पे convert कर सकते हैं. तो कभी कभी आप सारी computation decimal में करते हैं मगर आखिर में आपको integer चाहिए होता है. How can you convert those data types? So this is a type conversion. और इसमें हम बहुत सारी एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम नंबर को फ्लोट में, इंटीजर में, स्ट्रिंग में और किस तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है. So after this we will start looking into the structure of conditional flow. देखिए प्रोग्रामिंग क्या होती है. प्रोग्रामिंग एक लॉजिक होती है, हमें कोई काम करना है उसके लिए लॉजिक है. अब लॉजिक में एक रूल नहीं होता, सिनेरियो होता है. अगर बारिश हो रही है तो रेनकोट पहन के चले जाते हैं, अगर गर्मी है तो लॉन के कपड़े पहन लेते हैं, अगर सर्दी है तो जैकेट साथ ले लेते हैं. तो इफ एल्स करके कंडीशंस बनती हैं. तो पाइथन में किस तरीके से इफ एल्स यूज होता है और इसको हम कंडीशनल फ्लो कहते हैं. तो हमारी थर्ड क्लास में फिर हम प्रोग्राम फ्लोस देखना शुरू करेंगे कि किस तरीके से कंडीशंस कंपेयर होती हैं और किस तरह से कंडीशनल फ्लो की लॉजिक बनती है. अच्छा जी, फिर चौथा काम अगेन रैंडमनेस एंड सिंपल गेम्स. प्रोग्रामिंग जो है, अगर हर चीज का आंसर आपको पता हो, हर चीज डिसाइडेड हो, तो आपको ज्यादा प्रोग्रामिंग की वैसी जरूरत नहीं. प्रोग्रामिंग हैंडल्स द रैंडमनेस इन द natural system, or I think the major utility of programming is to work with the randomness. तो जैसे कि अगर हम लोगों ने कोई सैंपल लेना है और हम पहले 10 लोगों का सैंपल लेके रिपोर्ट बना दें तो वो तो अच्छी रिपोर्ट नहीं होगी, बायस होगा.
कि भाई जो लोग नजदीक तरीन थे उनसे इंटरव्यू लिया और उनको हमने बना दिया उनकी रिपोर्ट। तो हमें रैंडमली लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग of the people, of the data. So understanding randomness and then using that randomness for simple games. देखिए गेम ऑफ चांस जो होते हैं, लूडो है तो लूडो में रैंडमनेस नहीं है कि कोई सा भी नंबर आ जाएगा और खेलना है। तो सिंपल गेम्स जो है उनके लिए रैंडमनेस कैसे यूज होती है हम इसको देखेंगे और हम रैंडमली नंबर्स को जनरेट करना सीखेंगे। इसके बाद पाइथन लिस्ट्स, पाइथन लिस्ट्स एंड जंबल्ड गेम्स, ये एक डेटा टाइप है पाइथन, हमने पहले इधर भी देखी थी। हमारे पास इधर भी पाइथन लिस्ट थी, मगर पाइथन लिस्ट एक इंतहाई इम्पोर्टेंट और बहुत ज्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप है। तो फिर से हम लोग वही एक चीज देखेंगे कि क्या एक रैंडमनेस क्रिएट करने की और उस रैंडमनेस को यूज करने की। जैसे कि क्या हम एक फन क्विज बना सकते हैं। आप सोचिए वर्डल होता है या कोई भी क्विज गेम होता है, तो हो सकता है एक बड़ी सी लिस्ट में डेटा हो और एकदम से कहीं से पॉप आउट हो जाता है रैंडमली। तो कनेक्टिंग दोस कॉन्सेप्ट्स टू हैव मोर फन विद आवर पाइथन लर्निंग। ओके, नाउ in our 6th class, we will study for and while loops or generally loops in Python. Why do we study loops in Python? देखिए, loops जो है हर वो काम जो आपने 10 दफा करना है उसको एक पाइथन का कोड लिख के आप एक दफा कर सकते हैं। और अगर आपने वही काम 100 टाइम्स भी करना है तो आपको कोड चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लेंथ चेंज करने की जरूरत है। तो ये जो इफादियत या यूटिलिटी होती है लूप्स की कि वो रेपिटेटिव काम को ऑटोमेट कर देते हैं, ये लूप्स को समझना बड़ा जरूरी होता है। और लूप्स को अच्छे तरीके से समझ लेने की मेक्स यू वेरी गुड प्रोग्रामर। सो इन आवर 6th क्लास वी विल लुक एट अ नोटबुक व्हिच विल टेल कि भाई लूप कैसे चलता है, लूप को चलाने का फायदा और यूज क्या होता है। अच्छा जी, इसके बाद हम पाइथन फंक्शंस पे आते हैं। अभी 10th लेक्चर में, ये हमारा 7th लेक्चर, हमारे 10th लेक्चर में वी विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि ये तमाम चीजें एक दूसरे को लीड कर रही हैं। तो एक फंक्शन बनाना इसलिए जरूरी होता है कि जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कंप्यूटर खुद ब खुद कैसे चलता है, कंप्यूटर में कैसे उसे पता है कि अभी मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है या फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लोड करना है और स्क्रीन शेयर करनी है। तो अगर आप लोग ये देखें हमारी नोटबुक, तो इसमें तो ये प्ले का बटन है। तो यहाँ तक तो मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कि प्ले दबाएंगे तो काम होगा, मगर हमारी रियल लाइफ में प्ले तो नहीं दबाता कोई, वो तो खुद ब खुद एक चीज दूसरे को कॉल करती है, दूसरी तीसरे को कॉल करती है। वो फीचर लाने के लिए फंक्शंस होते हैं जो कि कॉल होते हैं और खुद ब खुद रन करते हैं, तो आपको मैन्युअली कोई काम नहीं करना होता। तो ये हमारी नोटबुक, इधर हमने फंक्शंस बनाना शुरू कर दिए और फंक्शंस के अंदर वही कोडिंग जो हम पहले बगैर फंक्शंस के कर रहे थे, अब हमने फंक्शंस के अंदर करना शुरू कर दी। अच्छा, इसके बाद एक और बहुत ही अहम डेटा सेट है डिक्शनरीज, जो कि लिस्ट के साथ का है, कंटेनर है, बहुत सारी वैल्यूज कंटेन कर सकता है। तो हम अगली क्लास में देखेंगे कि डिक्शनरीज कैसे इस्तेमाल होती है। डिक्शनरीज के मैं आपको नोटबुक दिखाती हूँ कि जैसे हम कहते हैं ए में सारे ए से स्टार्टिंग वाले हमारे वो होंगे, ए से स्टार्टिंग वाले नाम होंगे, बी में बी से स्टार्टिंग वाले। तो उसका फिर बाद में यूज कैसे होता है, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना सकते हैं, आप रेफरेंसेस बना सकते हैं, ये सब हम क्लास 8 में करेंगे। लेक्चर 9 इज अबाउट CSV। अब हमने फंक्शंस पढ़ लिए और हमने दो अहम डेटा टाइप्स लिस्ट और डिक्शनरीज पढ़ ली। अब हम देखेंगे कि एक अगर आपके पास एक्सेल की फाइल है, CSV फाइल है, तो उसको पाइथन में कैसे रीड करना है, पाइथन में खोल के रीड करके उसको एडिट करके सेव करना। दिस विल बी आवर लेक्चर 9। Lecture 10 is again a very important form of programming called recursive function. इसका तरीका ये होता है कि एक ही फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल करता है और बार बार कॉल करके कंप्यूटेशन करता है। तो अब देखिए ये एक ही फंक्शन है जो बार बार अपने आप को कॉल किया जाएगा, या अगर इसके आपको कोड दिखाऊं तो एक ही फंक्शन को कॉल कर करके बार बार हम लोग उससे रिजल्ट्स निकालते हैं। इसकी ज्यादातर इफादियत होती है मैथमेटिकल सीक्वेंसेस में, फिबोनाची सीरीज है, ज्योमेट्रिक सीरीज है, अरिथमेटिक सीरीज है। अगर आप किसी सीरीज पे काम कर रहे हैं
तो ये बहुत अच्छा कोडिंग स्टाइल होता है। अच्छा, इसके बाद हमने लूप्स पढ़ लिया, हमने लिस्ट पढ़ लिया, हमने रिकर्जन पढ़ लिया। अब हमने देखना है कि हम एक काम को ज्यादा अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं या उसके अंदर ज्यादा वैरायटी कैसे डाल सकते हैं। तो आपके सामने ये एक लाइन ऑफ कोड है, ठीक है। अगर ये आप देखें तो एक लाइन है कोड की, मगर इसमें 3 काम हो रहे हैं। इसमें आउटपुट, कहाँ से डेटा लेना है और कौन सी कंडीशन पे लेना है। तो ये बड़ी एक जिन्होंने प्रोग्रामिंग नहीं की भी उनको ये शायद इसका एहसास नहीं कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है, मगर जो पहले से प्रोग्रामिंग करके अगर आ रहे हैं तो ये काम करने के लिए बाकी लैंग्वेजेस में 10-10 लाइन ऑफ कोड लिखने होते हैं, मगर वही काम पाइथन आपको एक लाइन ऑफ कोड में करके दिखा रहा है, which is very exciting. So we will look into this, and I think this is our functional programming and recursion का, नहीं, this is our object oriented programming का notebook. Okay, now ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मुझे यकीन है आप लोगों ने बहुत दफा ये नाम सुना होगा, और आप लोगों को अब मतलब कि अगर जानना चाहते हैं क्या होता है तो देखिए, पहिया सिर्फ एक दफा बना था लेकिन बार बार इस्तेमाल होता है ना। वी डोंट री इन्वेंट द व्हील, वी जस्ट री इन्वेंट द यूज ऑफ व्हील। तो प्रोग्रामिंग ऐसी होनी चाहिए कि एक दफा बन जाए तो हर दफा नई नहीं बनानी, उसको बार बार इस्तेमाल करना है। जैसे कि बिलफर्ज इस पिक्चर में एक अगर हमें रोबोट बनाना है तो हम हर रोबोट के लिए नई क्लास नहीं बनाएंगे, हम एक क्लास रोबोट्स की बनाएंगे। उसमें हम एक ऑब्जेक्ट बना सकते हैं एलिस, हम उसमें एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं बॉब। तो ये बार बार ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाने हैं, इसको सीखने के लिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीखेंगे। ये हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास की नोटबुक है, और इससे हम देखेंगे कि बार बार काम करने के बजाय हम एक ही क्लास में से बार बार ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाएं। अच्छा, इसके बाद हम अपनी 13th क्लास में विजुअलाइजेशन देखेंगे। देखिए, विजुअलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है। हमें जल्दी अगर कोई डिसीजन बनाना है और बहुत सारा डेटा है तो एक्सेल रीड करना या इवन डेटा किसी भी फॉर्म में रीड करना मुश्किल है, मगर अगर वही काम हम लोग एक चार्ट में दिखा दें तो इंस्टेंटली पता चल जाता है कि भाई डेटा किस तरफ जा रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है कि जब डेटा आपके पास आ जाए तो उस डेटा को आपने कैसे शो करना है। तो जैसे कि अगर आप इसमें बता सकते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन है, आपको बहुत मैथ करने की कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये हम लोग देखेंगे किस तरह से अपने डेटा को विजुअलाइज करें, और हम मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी है पाइथन की वो यूज करेंगे ये करने के लिए। अच्छा, अब हम लोग देखिए अपनी क्लास पे आ गए हैं। सो आउट ऑफ 16 क्लासेस हमने 13 क्लासेस पढ़ लिया है, और यहाँ तक आने से पहले क्योंकि ये हमारा एक तरह से एडवांस टॉपिक है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मेरी एक्सपेक्टेशन है कि मैं आप लोगों को जो काम दे रही हूँ और जो समझा रही हूँ और जो क्लासेस आप अटेंड कर रहे हैं उसमें आप फुली इन्वॉल्व रहे और पीछे का सब कुछ समझ लिया। देखिए, अगर इन तमाम चीजों में आपने बिलफर्ज ये पॉसिबल है विजुअलाइजेशन तक कि कोई चीज आप कवर कर सके, प्रैक्टिस कर सके, लेकिन इससे आगे जरा आपको रिगरस एफर्ट चाहिए होगी, क्योंकि अब हम लोग पढ़ेंगे लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। अच्छा, अगर आप लोग रेज करें अपना हैंड और मुझे बताएं आप लोगों में से कितने लोगों को लीनियर रिग्रेशन पता है क्या होता है। I can't see the gallery, but so raise your hand if you know what is a linear regression. Excuse me? जी, लीनियर रिग्रेशन बेसिकली हम लोग रिग्रेस करते हैं दो वेरिएबल्स को एक दूसरे के साथ, उनका रिलेशनशिप होता है अगर डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का। जबरदस्त जबरदस्त। ये आप ही ने रेज किया हुआ हैंड या किसी और ने भी किया है? Is that your hand? एक और साहब या साहिबा जिनको पता है लीनियर रिग्रेशन क्या होता है? चले, जी बिल्कुल जबरदस्त आपने। देखिए, what you've said is bullseye, ठीक है ना, it's 100 on 100 आंसर, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो बहुत एडवांस लेवल पे भी जाके ये चीज नहीं समझ सकते कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा इंडिपेंडेंट और उनका कोरिलेशन समझना क्यों जरूरी है। तो हम लोग इस क्लास में देखेंगे लीनियर रिग्रेशन को, एंड वी विल यूज साइकिट लर्न। साइकिट एक लाइब्रेरी से, मैटप्लॉटलिब एक लाइब्रेरी थी जिससे हमने विजुअलाइजेशन कर ली, और यही पाइथन की स्ट्रेंथ है कि पाइथन में इतनी लाइब्रेरीज है कि जो काम करना है उसकी लाइब्रेरी आपको पहले से बनी बनाई मिल जाएगी। तो लीनियर रिग्रेशन के लिए हम लोग numpy यूज करेंगे, और numpy से हम देखेंगे कि
किस तरीके से लीनियर रिग्रेशन की जा सकती है। Linear regression के बाद our next class, which will I know will comprise of 2 classes, is कि अब हमने डेटा को pandas एक थर्ड लाइब्रेरी है, जैसे कि हमने matplotlib एक लाइब्रेरी देखी और scikit-learn एक लाइब्रेरी देखी। अब हमारी तीसरी लाइब्रेरी जो हम देखेंगे वो pandas है। pandas डेटा मैनिपुलेशन की और डेटा ETL की, एडिट एंड लोड की एक जबरदस्त लाइब्रेरी है। हम इसको देखेंगे, हम डेटा एक्सेल से लेंगे और उसको हम अपलोड करेंगे pandas में और फिर उसको यूज करेंगे अपने पाइथन की प्रोग्रामिंग में। तो इधर आप देखें कि जैसे अगर ये डेटा है जो कि डिक्शनरी है, ठीक है ना, तो ये हमने लोड कर लिया डेटा फ्रेम में इस शक्ल में। लेकिन एग्जैक्टली यही काम हम एक बहुत बड़ी CSV फाइल के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पे डेटा लिखने की जरूरत नहीं है, जितनी बड़ी भी CSV फाइल है आपके पास, हम उसको भी एग्जैक्टली उसी तरह लोड कर सकते हैं और उसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इस कोड में आप देखिए, मैंने एवरेज निकाला है कार का, तो तमाम कार जो है उनकी एवरेज आ गई। अब ये एवरेज वैल्यू इधर नहीं थी, द कार और स्पीड था, बट आई कैन प्रोसेस द डेटा in pandas very quickly by one line of code. Total one line of code is giving you the average. So these are the very exciting things that we will do, and this will be the end of our basic to intermediate Python programming course. I'm very excited about this course. I hope I have been very clear in setting your expectations right on what is this course about, because I know before you even ask me a question, let me answer in FAQ. Because Python में visualization भी है, Python में machine learning भी है, Python में data analysis भी है, तो लोग Python के साथ बहुत confuse हो जाते हैं, ठीक है? So one thing I want you to understand is this is Python programming. This will be the foundation for you to understand कि Python के ऊपर बाकी libraries कैसे pull होती हैं, but it will not be a library-based tutorial. It will be a programming concept-based learning. With that said, I'm open to, so if you have any questions related to the course, related to me, or related to what I have shown you in the demo, please ask away. And all the other questions मैं request करूँगी फरहान साहब को address करने के, because he understands the bigger picture of UXL Institute. Gee, thank you very much. I think I'm open to question and answers now. Excellent. Thank you so much, Ms. Farah, for such a wonderful demonstration of the basic to intermediate Python programming. I'm pretty sure the audience will have a lot of questions, but it's quite interesting to know कि अगर तो एक क्वेश्चन जो काफी फ्रिक्वेंटली हमें कैंडिडेट्स की तरफ से मिला कि सर हम इस कोर्स को इसलिए ज्वाइन करना चाहते हैं कि हमारे पास कोई भी बैकग्राउंड नहीं है पाइथन का, हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट, बिल्कुल बेसिक स्टार्ट, हमारे पास कोई भी नॉलेज नहीं है, तो हम क्या जीरो लेवल से भी स्टार्ट करके इस कोर्स में इंटरमीडिएट लेवल पे पहुंच जाएंगे या कोई प्रीरिक्विजिट चाहिए होगा हमें? तो एक क्वेश्चन ये काफी ज्यादा आया था ऑडियंस के while we were conversing with the audience, तो अगर इसका जवाब अगर आप देना चाहें, then obviously rest of the question audience भी पूछेगी, but this was one of the questions that was frequently asked, so I would really encourage if you can help answer. अच्छा ठीक है फरहान साहब, ये मैं I'm addressing to all my amazing participants. देखिए मैं टीचर हूँ और टीचर की थोड़ी सी आप लोगों को सख्त जवाब बर्दाश्त करने पड़ते हैं, because it's only for your own good. आप कुछ भी सीख सकते हैं अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं. When my first commitment is that you don't need programming background. I stand committed to this, ठीक है ना? मगर अगर आप मेहनत करने के लिए नहीं तैयार, अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए नहीं तैयार, if you're not excited about it, तो ये कमर्शियल लेवल पे आपका कोई फायदा नहीं देगा. So it's both way effort. It's a both way effort, and I'm all in. मैं किसी से नहीं एक्सपेक्ट करूंगी कि वो कुछ पढ़ के आ रहे हो, मगर जाकर पढ़े, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है. Excellent, excellent, excellent. And this is clearly mentioned in the brochure as well. जब हमने brochure share किया तो उसमें I think it was a number of hours that was mentioned there, right? I think 6 to 8 hours a week, or at least कुछ number of hours भी हैं जो commit करने पड़ेंगे आपको. जी जी बिल्कुल. Right, 4 hours तो training के ही हो गए in a week, but 4 hours के अलावा भी, yeah. मैंने आप लोगों को डराया नहीं, but there'll be assignments and there'll be take home work and there'll be a project. और देखिए मुझे किसी ने बड़ी जबरदस्त बात की थी कि उसने मुझे कहा था मैम
मैं आपसे अच्छी प्रोग्रामिंग डिस्कस कर सकता हूँ, मगर मैं आपसे अच्छी प्रोग्रामिंग कर नहीं सकता। तो बातें बहुत कम होंगी, इसमें काम बहुत ज्यादा होगा। ये आप लोग प्लीज कमिटमेंट अपनी रखिएगा कि आई एम देयर टू हेल्प यू, बट करना आप लोगों ने है। ठीक है जी। Exactly. I think it is also very useful because देखें यहाँ पे UXL में, और I think in learning industry it's always we promote a methodology which is learn by doing. You only learn by doing. That's it. There is no other fact, or there is nothing else. You just learn by doing. Yes, you will be there to make mistakes, but we will be having a support mechanism for you. But ultimately you have to do it. So that is what really is important कि आप करें, लेकिन आप करते हुए जब आपसे mistakes होंगी, yeah, you'll be making certain errors. So just don't feel demotivated, because we'll be there for you to provide you the support mechanism. But then the important factor that really Ms. Farah Mehboob here highlighting is that it's an important support mechanism. It's a support mechanism. It's not the think कि भाई आके आपका काम हम खुद कर रहे हैं. That is what, so there's a difference between this. That is what really I think it is very important कि जो है वो इसके ऊपर highlight किया जाए. But rest of the questions I would really encourage. अच्छा, do you feel कि ये demo थोड़ा सा quickly fast तो नहीं हो गया? If you have any questions, कोई ऐसा chapter हो या कोई ऐसा lesson plan हो जिसमें आपको कोई question हो, तो मिस फरा मे भी आपके लिए थोड़ा सा उस स्लाइड को फिर से रिवाइज करा दें. कहीं आपको लगता है अगर थोड़ा सा क्विक है तो फिर आप ये भी बता सकते हैं, because you know at times absorbing the information in one go becomes a little challenging as well. तो अगर ऐसा महसूस हो रहा है आपको कि ये थोड़ा सा अगर फास्ट आपको लग रहा है, और आपको लग रहा है कि नहीं कुछ ऐसी स्लाइड्स हैं जहां पे आपको लगता है कि मुझे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दे so that my mind starts processing, so just feel like telling it and we'll be there to provide you a good recap, because आपको ये बात इंपॉर्टेंट है कि टाइम बहुत शॉर्ट है और उसमें हमें सारी चीजें कवर करनी थी. सो इफ यू वांट कि थोड़ा सा रिकैप किसी स्लाइड्स का चाहिए तो वो भी कर देंगे, और इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस है तो जस्ट फील लाइक आस्किंग इट एंड वील बी देयर टू हेल्प यू. जी, over to our wonderful audience. Please ask us questions. Muniza has a question. Muniza Bayas has written, I'm a chartered accountant working at a software house. Wanted to know how would this course add value in my career? मुनीजा देखिए, अगर आप सीए और सॉफ्टवेयर हाउस की बात करती है, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट टू एडवाइस यू ऑन करियर, बट जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि आप अगर अपने बॉस के पास एक विजुअलाइजेशन रिपोर्ट ले जाती हैं, ठीक है, व्हाटएवर नंबर्स यू हैव वर्कड ऑन, अगर आप 10 लाइन ऑफ कोड में ये काम कर सकती हैं, या अगर आप सॉफ्टवेयर हाउस में अपने स्टॉक एक्सचेंज का डेटा, एंड आई एम जस्ट गिविंग यू वन रैंडम आइडिया, स्टॉक एक्सचेंज के डेटा के ऊपर कोई एवरेज परफॉर्मेंस क्रिएट कर सकती हैं. सो दोज आर द थिंग्स सीए का. सो माय एक्सपीरियंस व्हेन आई टीच to financial students is that they give me the feedback, which is again brutally honest, कि पाकिस्तान में अभी इंडस्ट्री उतनी आगे नहीं गई है कि हमें फॉरेन ही करियर हम समझ जाएं क्या होगा, क्योंकि things are manual and things are decentralized in terms of data. But internationally इतना data available है, इतने data sets available हैं. So for reporting, अब जो इस किस्म की रिपोर्टिंग है कि आप डेट पे ग्रुप करके रिपोर्टिंग कर सकती हैं, आप कार की कैटेगरी पे रिपोर्टिंग कर सकती हैं. So this can maybe give you some dot connecting कि जो काम मैं कर रही हूँ क्या वो इसका फायदा है. और again let me tell you कि before coming to lecture 15 and doing this, you need to understand all of this in the background, so which is what is the foundation कि आपको कुछ भी नहीं आता, कोई बात नहीं, आप यहाँ से शुरू करें, आखिर में you can handle data. I hope that clears some bit of what you asked. अच्छा, मुनीजा का क्वेश्चन जो है वो अगर मैं इसको अगर थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट करूं, बिकॉज आई माई सेल्फ हैव एन अकाउंटेंट बैकग्राउंड, तो अगर उसके क्वेश्चन को अगर शायद मैं अगर मिसाल के तौर पे कुछ रिपोर्ट्स ऐसे एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट ये एक्सेल में रिपोर्ट अभी पब्लिश कर रही होंगी मिस मुनीजा, राइट, एक्सेल की रिपोर्ट कुछ बनाती होंगी और वो जाके बोर्ड डायरेक्टर्स को या फिर जो ओनर्स हैं उनको प्रेजेंट करती थी. अब ये एक्सेल के बजाय पाइथन का कुछ ब्लेंड यूज करके फिर रिपोर्ट्स कर रही होंगी, so how will this help them? How will her journey be? Will it really help her, and in what domains it may help her? कि एक्सेल की रिपोर्टिंग के बजाय अब वो पाइथन के थ्रू जो है वो रिपोर्टिंग कर रही हैं. So if I'm able to articulate my question. I'll take it as a second question. I'm not continuing my first explanation. कि देखिए ये बड़ा अच्छी एक पॉइंट है कि
क्या पाइथन जरूरी नहीं है फिर अगर आप pandas सीख लें तो आप Python has its own strengths and pandas has its own strengths. Excel has its own strengths. So Excel एक बहुत strong tool है और जो हम ये कोर्स सीखेंगे उसमें Excel से pandas में आने तक तो हम लोग सीख लेंगे और उसकी लेकिन विजुअलाइजेशन तो Excel में भी होती है, but from here you can scale up. You can scale up your skills and you can scale up your जो टेक्निक्स आप एक्सेल में यूज कर रही हैं वो पाइथन में स्केल्ड अप यूज हो सकती हैं. आउट ऑफ द स्कोप ऑफ दिस कोर्स आपने अगर यहाँ तक सीख लिया है तो आप उसमें क्लस्टरिंग कर सकती हैं, क्लासिफिकेशन कर सकती हैं, डेटा साइंस यूज कर सकती हैं, मशीन लर्निंग यूज कर सकती हैं. मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल फिर से दूंगी कि अगर आपने सारा कुछ पैंडास में लोड कर लिया है और इस कोर्स के खत्म होने के बाद आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरे पास इतनी स्किल्स है कि मैं आगे डेटा साइंस लर्न करना चाहूँ, तो डेटा साइंस बहुत इंटेंस वो लेती है प्रोसेसिंग पावर. तो जो मैंने आप लोगों को शुरू में दिखाया था कि आपको मोबाइल फोन में, अगर आप मोबाइल फोन में इधर जाकर जीपीयू यूज कर सकते हैं जो कि एक्सेल में नहीं यूज कर सकते, तो डायरेक्टली नहीं, तो when you scale up तो आपको बहुत फायदे हासिल होते हैं सिर्फ पाइथन के साथ इंटीग्रेटेड होने की, जो लाइब्रेरीज और जो स्ट्रक्चर इंटीग्रेटेड है. Excellent, excellent. Because data जो है वो जिस लेवल पे अब बढ़ता जा रहा है, तो I think there are certain, Excel is amazing tool, but obviously Excel also comes up with its own limitations. So I think then this is really where it can really step up your career and you can go to next level, right? देखिए अगेन मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोग ये इतनी पावरफुल चीज है कि अगर आप लोग ये फ्रस्ट्रेट हो, जो कि अक्सर स्टूडेंट्स होते हैं कि भाई हमारी जॉब में यूज नहीं हो रहा, यू कैन क्रिएट मोर जॉब्स, यू कैन डू फ्रीलांस. अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान की फाइनेंशियल सेक्टर में कितनी ऑटोमेशन हो गई है, मगर अगर नहीं हुई है तो आप अपवर्क पे काम कर सकते हैं, आप अपने प्रोफाइल बना सकते हैं और आप मतलब आई कैन नॉट, अभी फरहान साहब और मुझसे ज्यादा इसमें इन्वॉल्व है कि अभी एकेडेमिया इंडस्ट्री गैप है, मगर you will enjoy the first mover advantage when the gap starts to reduce. That I know. Excellent. All right. So any other question? Okay, there is one question here that I can see in the chat box. The question has been asked by Muhammad Ali and it's a direct message. इसकी वजह से शायद वो सबको नजर नहीं आ रहा होगा. Can we use Python for web development? This is the question by Muhammad Ali. Can we use Python for web development? देखिए मैंने आपको बताया था ना कि पाइथन में ऊपर फॉर्मेट्स बहुत हैं, तो पाइथन के इंटरफेसिंग भी हो जाती है. वेब डेवलपमेंट में जैंगो फ्रेमवर्क है एक, जो हम नहीं पढ़ेंगे इसमें अपने कोर्स में, मगर टू आंसर योर क्वेश्चन देयर इज अ फ्रेमवर्क फॉर वेब डेवलपमेंट एंड इट इज कॉल्ड जैंगो. और मैं ना उसको लिख देती हूँ ताकि आपको अगर नोट करना है व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, तो व्हाट पे शुड आई राइट इट, मैं इधर नाम लिख देती हूँ ताकि उसकी स्पेलिंग जरा. ये एक फ्रेमवर्क है for web development in Python, Django. और ये MV वो क्या होता है, module version control, MVC वो framework है, तो it's a very stable framework for Python web development. Excellent. Any other questions from our wonderful audience? Ji. I'll just scroll up just to make sure कि मैंने कोई miss नहीं किया. So develop. So I think Muniza and Zainab, have I missed out on answering anything? Because you two actually asked on chat. Okay, great. Thank you. ठीक है जी. Excellent. That's great. So I think it's one of the either way कि हमारा डेमो इतना अच्छा हो गया है, इतना कॉम्प्रिहेंसिव हो गया है कि किसी को कोई क्वेश्चन ही नहीं है, या फिर अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिचकिचाहट है. तो मैं आप सब कहना चाह रही हूँ. जी श्योर जी बताइए जी. मैंने चूंकि आपसे शेयर किया था कि मैंने एक कोर्स ऑलरेडी लिया हुआ है, लेकिन मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी क्योंकि आपने बहुत अच्छे से इसके कोर्स कंटेंट बताए हैं कि आप क्या क्या पढ़ाएंगे, किस वीक में क्या पढ़ाएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि हम बिग डाटा को कैसे अपलोड करके उसका एनालिसिस करेंगे.
ये मतलब मैं इसमें आपको अप्रिशिएट करूंगी। जो इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने फील की थी ड्यूरिंग माय लर्निंग, क्योंकि मेरा प्रोग्रामिंग से कोई ताल्लुक नहीं था, जब वो पढ़ा रहे होते हैं तो जो पढ़ाने वाला होता है, इंस्ट्रक्टर होता है, उसका ताल्लुक प्रोग्रामिंग से जरूर होता है, ये मैंने देखा है। और वो ये समझ रहा होता है कि जो ऑडियंस है ना वो भी उसको इसी तरह से अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और वो लॉजिक्स लगा रहे होते हैं। लेकिन जब लॉजिक्स इनिशियली लगाई जाती है उस वक्त बहुत टाइम लगता है उस चीज को अंडरस्टैंड करने में और उसको ग्रिप करने में। इसलिए मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी, और मेरे ख्याल में ये इंस्ट्रक्टर बहुत अच्छी हैं, उनकी बहुत ग्रिप है पाइथन पे, वो आहिस्ता आहिस्ता लेके चले अपने ऑडियंस को, और उनसे साथ साथ कराती जाएं कि ये उनको पता चल गया ये लॉजिक, जो भी लॉजिक्स लगाती है, पैरेंथेसिस लगाए जाते हैं, कॉलन लगाए जाते हैं, इफ कंडीशन में इंटेंडेड कहाँ पे लगता है और इसका क्या रिजल्ट आता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर यहाँ पे हमारी उसमें कमांड आ गई तो डेफिनेटली वो आगे हमें बहुत सपोर्ट करेगी। First of all, thank you very much. It's very heartwarming जब आपको ऐसी validation मिलती है within not less than an hour. Jazakallah khair. I'm very overwhelmed by your appreciation. अच्छा, secondly, आपने जो feedback दिया ना, बड़ा बहादुरी वाली बात है। लोग घबराते हैं अपने weakest point सामने रखने के लिए। देखिए, for all those who would like to do this course, मैं आपसे जो है ये request करूंगी कि आपने सवाल पूछने में घबराना नहीं है, ठीक है ना? मतलब कि जिससे इन्होंने कहा मुझे इंटेंटेशन बताओ, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं बताऊं। हो सकता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ऑब्वियस चीज, वो जो उन्होंने बात की, मैं तो इतने सालों से प्रोग्रामिंग कर रही हूँ, और मेरे लिए होगी या ये सबको आती होगी, आपको नहीं आती। नेवर शाई अवे फ्रॉम आस्किंग द क्वेश्चन, एंड नो क्वेश्चन इज रॉन्ग और स्टूपिड, ठीक है? दो काम होंगे, या तो मैं आपको, तीन काम होंगे, या तो मैं आपको आंसर दे दूंगी, या मैं कहूंगी कि ये आंसर बाद में आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं सब कुछ एंड में कनेक्ट होने लग जाता है, या तीसरा मैं बता दूंगी कि ये तो मुझे भी नहीं पता, मुझे थोड़े दिन दे। ऐसा होता है मेरे साथ कि मैं कहती हूँ मुझे नहीं आता, और मैं कुछ सीख कर आकर बता दूंगी। आई डोंट शाई अवे फ्रॉम सेइंग मुझे नहीं आता। आप लोगों ने कभी ये शाई अवे नहीं करना कि सबको आ रहा है, हमें नहीं आ रहा, तो हम चुप रहते हैं। तो यस, इफ वी आर इंटरैक्टिव एंड वी आर आस्किंग द क्वेश्चंस, इंशाल्लाह ये मसला नहीं होगा। Excellent. Okay, I have. Okay, we can hear. We can give Mohammed Waqas. I think Mohammed Waqas नाम है इनका। जी मोहम्मद वकास साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। सर मेरा क्वेश्चन है कि पाइथन के जरिए हम जो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हैं कंप्यूटर की डेवलप कर सकते हैं? Can you repeat your question again, please? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करके हम जो कंप्यूटर एप्लीकेशंस हैं वो डेवलप कर सकते हैं? मुझे कोई एग्जांपल, मैं आपके थोड़े से सवाल का जवाब दे देती हूँ जो मुझे समझ में आया, क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। जिस तरह का हम सी शार्प जो यूज करके हम एप्लीकेशन बनाते हैं डेस्कटॉप के, विंडोज डेस्कटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए, ठीक है? पाइथन से हम प्रोग्रामिंग उसी तरह की एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं? अच्छा जी, इसका जवाब है जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको इंटरफेस दिखाया वो क्लाउड पे था, मेरे ख्याल से इसीलिए आपके दिमाग में सवाल आया। मगर अगर आप सिर्फ पाइथन डाउनलोड करें तो आपको डेस्कटॉप पे, ये आप अगर देख सकते हैं ये कि ये बिल्कुल जैसे जावास्क्रिप्ट या की कोई आईडी, ये विजुअल स्टूडियो पे भी इंटीग्रेट हो जाता है पाइथन की आईडी ही, ये एनाकोंडा भी एक आईडी ही है, और ये डेस्कटॉप पे इंस्टॉल हो सकता है। बल्कि अगर हम लोग ऑनलाइन ना करें तो सबके लैपटॉप पे डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करना इसका एक स्टेप अप होता है। अगर ये एडवांस कोर्स होता तो हम इसे भी कर रहे होते। अच्छा, ये जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं ना, तो आपका जैसे जावा अगर आपने कभी कोडिंग की हो, सी शार्प, वो एक्सिक्यूटेबल फाइल होती है जो कि विंडोज पे चलेगी, और उस पे अब आप दो चीजें देखिए, इसका इंटरफेस भी होगा ना। आपके सवाल का दूसरा जवाब है कि हम डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हैं एक्सिक्यूटेबल। यस, इंटरफेस के लिए एक, जैसे कि इसकी पाइथन की एक लाइब्रेरी है, मैं आपको दिखा देती हूँ। हम उसे करेंगे नहीं, बट आई रियली वांट यू टू हैव योर आंसर की टेक इंटर करके एक लाइब्रेरी है जो कि इंटरफेस के ये बना देती है, इंटरफेस विजुअलाइजेशन भी ये बना देती है इस तरह की, ठीक है? तो पाइथन का इंटरफेस प्रोग्रामिंग है, GUI है, मगर इस कोर्स में हम बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग एंड पाइथन करेंगे, इंटरफेस पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन
आप अगर चाहते हैं आप क्लाउड पे काम ना करें, आप अपने पास इंस्टॉल करके करें, तो आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, रिजल्ट सेम ही आएंगे। Excellent. Jiwaka Sab, you got your answer? Yes, sir. Okay, great. Excellent. Okay, so we have one question that came to me via direct message, और ये मैं आगे चल के इसको कवर भी कर रहा था, लेकिन ये कि चलें अगर पर्सन ने अभी पूछ लिया है तो मैं अभी इसका जवाब दे देता हूँ कि ऑब्वियसली हमारे जो क्लास के टाइमिंग्स हैं वो ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड किए गए हैं इन द ब्रोशर। क्लासेस जो है वो एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे होंगी बिटवीन 5:30 PM to 7:30 PM, और ये क्लासेस जो है ऑनलाइन रखी हैं हमने, वर्चुअल लर्निंग है। ऑब्वियसली इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा बिकॉज यू कैन डायरेक्टली प्रैक्टिस इट फ्रॉम योर होम और योर ऑफिस, जहाँ से भी आपको एक्सेस कर सकते हैं इंटरनेट को। यू कैन इजीली टेक अप दीज क्लासेस विद फ्लेक्सिबल लर्निंग। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करता चलूँ कि ऑब्वियसली इन सेशंस को क्योंकि हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो हम इसकी रिकॉर्डिंग्स भी करेंगे और फिर रिकॉर्डिंग्स आपसे शेयर कर देंगे वाया LMS पोर्टल। हमारा अपना डेडिकेटेड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, LMS पोर्टल है। तो अगर मिसाल के तौर पे आपसे कोई सेशन अगर मिस हो जाता है, या इफ यू फील लाइक कि अगर ये सेशन में इसको फिर से कैसे रिकैप करूं, तो देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू रिकैप द सेशन थ्रू दी ऑनलाइन रिकॉर्डिंग। बट इसमें एक जो है ना एक पार्ट है जो कि आपको फॉलो करना होगा, वो ये है कि देखिए ये क्वेश्चन ये ट्रेनिंग तभी फायदेमंद है जब आप उसको लाइव अटेंड करते हैं। तो ये मेरा हमारा एक पर्सनल एक पर्सनल कहें, प्रोफेशनल कहें, या UXL में जब भी हमने ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का ऑप्शन दिया है तो पीपल टेंड टू मूव टू रिकॉर्डिंग्स के ओके रिकॉर्डिंग मिल जाएगी ना तो फाइन, आई विल टेक द रिकॉर्डिंग एंड नॉट अटेंड द लाइव सेशन। दिस इज व्हाट वी विल परहैप्स encourage you कि नहीं, you attend the live sessions because the trainer is there for you। जो लाइव सेशन का जो एक बेनिफिट है जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ट्रेनर के साथ, ट्रेनर अपना कीमती टाइम निकाल रहा है आपको लाइव ट्रेनिंग, वरना उनके लिए तो बड़ा आसान है कि वो रिकॉर्ड करके आपको शेयर कर दें, लेकिन ट्रेनर ने अपना लाइव टाइम निकाला है तो टेक एडवांटेज ऑफ दैट एंड अटेंड द लाइव ट्रेनिंग, उसका फायदा उठाएं। बट सर्टन टाइम्स अगर कुछ आपको इमरजेंसी हो जाती है या और कुछ ऐसा इशू आ जाता है तो देन यस यू कैन गो बैक टू द रिकॉर्डिंग एज वेल, और देन यू कैन रेफर टू इट। बट ये पाइथन प्रोग्रामिंग तो एक ऐसा एक सब्जेक्ट है जो आप लाइव ट्रेनिंग से ही अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, और हम आपके लिए अवेलेबल हैं, वी आर देयर टू फैसिलिटेट यू। तो इसका फायदा उठाएं आपसे, मैं आपको इस चीज के लिए इंकरेज करूंगा। थैंक यू। Okay, so there is one more question on that we should learn Python. Okay, Ms. Farah, this is question for you. Hashir Ubaid has asked a question that we should learn libraries in Python like pandas, NumPy, SciPy. Can we learn OOPS in this course? ये एक message किया है इसने everyone ने, so maybe if you can answer this question. This is the question from Hashir Ubaid. जी हाशिर, ये देखिए हमारा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक क्लास होगी, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काफी मतलब कि ये बल्कि हमने NASA की कोर्स को अडॉप्ट किया है, तो बड़े डिटेल में हम को पढ़ेंगे, ठीक है ना। दिस विल बी वन ऑफ आवर लेक्चर्स, so that I think tells you that's the second part of your question, can we learn OOP in this course? So अगर एक लेक्चर है 16 में से तो 1/16 of this course is OOPS. That's the answer. Actually, will we learn Python like pandas, NumPy and SciPy? The libraries that we will learn are NumPy, pandas and matplotlib, not SciPy. लेकिन मेरे ख्याल से जब NumPy और pandas और matplotlib पे आपका हाथ साफ हो जाएगा तो आप लोगों को जब उड़ना आ जाएगा तो आप खुद से जहां मर्जी उड़े, वो कोई कैद थोड़ी है। SciPy खुद से आप I have no doubts कि आप SciPy नहीं यूज कर सकेंगे for whatever reason you want to use it. But we'll not do SciPy in the class. Excellent. So I think we have a very engaging audience. What do you think, Ms. Farah?
काफी क्वेश्चंस आए हैं। अच्छा, माशाल्लाह टर्नओवर भी अच्छा है और अटेंशन भी अच्छी है. If you can be attentive in an online session, that's very promising. लेकिन I hope, as long as you're paying attention, you're involved, we're going to have a very exciting class if this stays. Excellent. That's great. And yes, as I said earlier as well, if you have any questions, just feel like asking from us, and I will give you, let's say, 1 more minute, maybe 21 हो रहे हैं, और उसके बाद मैं जो है वो I'll be taking you towards the next part of this presentation, where we will be sharing with you the special offer of this course, and there will be a special offer for all those who have attended our demo as well. क्योंकि आप अपना अगर कीमती टाइम निकाल के आज डेमो के लिए आए हैं, तो we feel like rewarding you for this, and उस स्पेशल ऑफर को भी डिस्कस करेंगे हम. And Miss Farah, if you're fine with the screen sharing part, so if you can, if I can just share the screen from my end. Okay, excellent. That's great. Thank you so much. All right, so let's share the screen now. To all the audience, please do let us know your email address and your cell numbers via private message at my end, so that we can share the special offer with you all. All those who will be providing their email IDs and cell numbers will only be able to access to the special offer. So kindly अपना जो है वो email ID और cell number इस पे Zoom chat पे अपना kindly share कर लीजिएगा. Thank you so much. So I'm sharing with you the screen now. Am I able to? Are you able to see the screen now? Please confirm. Screen nazar aa rahi hai? Okay, great. Thank you so much. All right. So to all those who have taken out the precious time for this demo, and I really look forward to having such a wonderful, exciting audience who is geared up to learn their way and develop their competencies in Python. Obviously, इसकी पहले जो ऑफर जो मैंने आपसे ब्रोशर शेयर किया था, PKR 10,000 per month और लमसम पे 18,500 था, but I will give you 2,000 further आपको कुछ डिस्काउंट दूंगा मैं. For all those who have attended the demo today, your price would be 9,000 rupees per month, because it's a 2-month training program, so you can break it down into the installments, or you can pay in lump sum 16,500. This is really one-time offer for you all. We wanted to encourage you, because देखिए हमारा मकसद जो है वो इसके साथ साथ ये भी है कि पाइथन प्रोग्रामिंग के जो इंडिविजुअल्स हैं बेसिक टू इंटरमीडिएट वो ज्यादा से ज्यादा हैं, बिकॉज एज मिस फरा पॉइंटेड आउट वेरी राइटली कि अभी जो है वो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है एंड उसमें जो है वो अपॉर्चुनिटीज आ रही है. सो व्हाई नॉट टेक द फर्स्ट मूवर द एडवांटेज. और ये प्राइसेस हमने इसलिए इसको लिमिटेड रखा हुआ है, थोड़ा सा डिस्काउंटेड रखा हुआ है, ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे पास पाकिस्तान में वर्कफोर्स वो पैदा हो जिनको पाइथन प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स और स्किल्स आते हों. दिस ऑफर विल एंड ऑन September 2nd, 2022. जी हाँ, हमने आपके लिए थोड़ा सा और फर्दर ख्याल रखा है. आई वाज थिंकिंग कि मैं ट्यूसडे तक इसको ऑफर रखूं, बट आई एक्सटेंडेड इट. आई सेड ओके फाइन, आई विल एक्सटेंड इट टू September 2, बिकॉज तब तक सबकी सैलरीज आ जाती हैं और कोशिश होती है कि तब तक थोड़ा सा फाइनेंस सही हो जाए. तो वी हैव एक्सटेंडेड इट टिल Friday, September 2nd, so that you have enough time to transfer your fee. But most important part here is to register today. This is the link I'm sharing with you right now. इस पे आप रजिस्टर करेंगे आज, तो फिर you will automatically qualify for this offer. तो ये ऑफर उनके लिए वैलिड है जो कि आज एटलीस्ट रजिस्टर कर दें, so that we could have number of registrations. We know that okay, these are the candidates who are qualifying for the offer. और फिर आप जो है वो फ्राइडे तक अपनी जो है वो इंस्टॉलमेंट या फिर लमसम में अगर आप पे करना चाहते हैं तो ट्रांसफर कर सकते हैं. पेमेंट के मोड्स हमने बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल रखे हुए हैं. यू कैन ट्रांसफर थ्रू online banking, you can transfer through Easy Paisa, you can transfer through Jazz Cash, you can do a direct deposit. आप even जो है वो हमारे पास विजिट करके भी जो है वो कर सकते हैं, सबमिट योर फी. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये कि सारी बैंक डिटेल्स आपसे तब शेयर कर दी जाएंगी जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर लेंगे. वी विल शेयर विद यू द बैंक डिटेल्स अपॉन फिलिंग द registration form. And I really thank you to each and every individual who have participated, and to Ms. Farah, who has taken her precious time out here for the demonstration. And I really look forward to, inshallah ta'ala, starting the sessions from
September 8th. September 8th is the date when we will be commencing our first session of Python programming. Thank you so much once again to each and every individual. If you have any final questions, you can ask and we'll be there to help you and support you. Any questions? G, any questions? I would also love to hear the feedback from you all. And Miss Muniza or Mutib Hussain Saab, let's hear from Mr. Mutib Hussain Saab. Mutib Hussain Saab, आपका feedback क्या है for this demo, and what are your prospects? How are you looking forward for this? जी Mutib साहब, अगर online है. सर मैं तो एक्साइटेड हूँ Excellent, thank you. क्योंकि मैं थोड़ा बहुत अपना शेयर कर देता हूँ. मैंने जब अपनी एजुकेशन कर रहा था तो मैंने एक स्टेटा पढ़ा था, स्टेटा 13. Okay. उसमें भी इट वाज यूज लाइक जस्ट लाइक पाइथन, कि हमें कोडिंग करके अपने रिलेशनशिप डेटा को एनालाइज करते थे. तो उस मतलब सब्जेक्ट से ना मेरे इसमें बड़ा इंटरेस्ट पैदा हुआ था. और मैं अपनी एक तरह से डेटा एनालिसिस की फील्ड को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तभी मैं ये ज़्यादा करने की उसमें हूँ. Excellent, excellent. That's great, and we are really thankful that you've really liked the demonstration. Obviously, इसका purpose ही ये था कि we should give our best in terms of providing you all the knowledge कि ये इसमें क्या होगा, आगे क्या cover होगा, और इंशाल्लाह ताला जैसी जो चीजें हमने यहाँ पे प्रॉमिस की है उनको इसी तरीके से इंशाल्लाह ताला हम फर्दर डिलीवर भी करेंगे. और फिर बुनियादी मकसद तो यही रहेगा कि आपके स्किल्स एनहांस हो, आप बेहतर से बेहतर सीख सकें और आप अपने करियर में फ्लरिश करें, बिकॉज दैट इज व्हाट रियली आवर मिशन इज टू एनहांस द एम्प्लॉयबिलिटी एंड ब्रिज द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया एंड हैव अ फ्लरिशिंग करियर अहेड. और जो है वो आई एम रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस कोर्स. एंड और फिर सबसे बड़ी बात ये भी है कि जब आप कोई स्किल सीख लें तो उसकी फिर रिकग्निशन भी उस तरीके से मिलनी चाहिए. तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो भी रिकग्नाइज मिलेगा बाय द गवर्नमेंट. उसको आप कहीं भी कल यूएई में जाते हैं, मिडिल ईस्ट में जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, यू कैन प्राउडली शेयर दिस सर्टिफिकेट बिकॉज इट विल बी रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट. एंड जो आपकी एम्बेसीज हैं उसके थ्रू अगर आप वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, बिकॉज समटाइम्स कुछ एम्प्लॉयर्स ऐसे होते हैं जो कि वेरीफाई कराते हैं सर्टिफिकेट्स, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एक वेरिफिकेशन का मैकेनिज्म होगा फ्रॉम द गवर्नमेंट जो आपको वेरीफाई करके देगा अबाउट द endorsement of the certificate that you'll be getting. So having the right skills, learning the right skills, and then getting acknowledgement and endorsement in terms of certificate, पूरा एक पैकेज बना दिया गया है आपके लिए. रिकॉर्डिंग्स जो है वो अवेलेबल होंगी ताकि आप फैसिलिटेट कर सकें, हम आपको फैसिलिटेट कर सकें आपकी लर्निंग के लिए. And as always, we'll be always striving hard to provide you an excellent learning experience at UXL. With help of Ms. Farah Mehboob, who is the lead faculty for this course. Thank you so much. 12:29 p.m. हो रहे हैं. We are almost towards the end of this demonstration. 11:30 a.m. till 12:30 p.m. हमारा time था. If you have any final questions or any other feedback that you would like to share, we would love to hear from you. Any feedback or any comments or any questions, and then we'll be closing this session. And then looking forward on September 8th. Any questions or any feedback that anybody would want to share? All right. That's great. Thank you so much once again. And I really look forward to seeing you on September 8th, 5:30 p.m. into our very first session. Thank you so much. Ms. Farah, any final remarks that you would like to add? I look forward to it myself. I'm very excited. Thank you very much, everyone. Excellent. That's great. Thank you so much. We are concluding today's meeting, and we really look forward to welcoming you. Thank you so much. Thank you once again. Thank you. Hafiz.